Hello students, welcome to my YouTube channel GK Time. Today in this video we discuss about the fundamental right given to the citizen of India. Let's start. Fundamental rights বা মৌলিক অধিকার. Generally, fundamental right means the rights which are required for the development of individual personality. বা ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବୋଲି କହିଥାଉ. It is called as fundamental because it is guaranteed by the highest law of the land which is known as constitution. ଏହି ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କୁହାଯାଏ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ. Then it has been derived from USA Constitution ବା ଏହି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଗୃହୀତ. Then it has been mentioned in Part 3 under Article 12 to Article 35 of our Constitution ବା ଏହି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଭାଗ 3ରେ ଧାରା 12ରୁ ଧାରା 35 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ. Then these are justiciable in nature. It means for the enforcement of fundamental rights a person can directly move to the Supreme Court as per Article 32 or to the High Court as per Article 226. ଏହି ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପ୍ରତିପାଦନୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ଧାରା 32 ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ଧାରା 226 ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବ. Then these rights are given by the Constitution to the citizen of India ବା ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି. And also some fundamental rights are given to the non-citizen except Article 19, 16, 29 and 30 ବା କିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଣନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି କିନ୍ତୁ ଧାରା 19, 16, 29 ଓ 30ର ବ୍ୟତୀତ. Then the fundamental rights are limitation on the government ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଥାଏ. Then the fundamental rights are limited to the armed force ବା ଏହି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଂକୁଚିତ. Then during the national emergency Article 19 automatically suspended but not in case of internal armed rebellion. ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧାରା 19 ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ରୋହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ. Then the other fundamental rights can be suspended by the President of India except Article 20 and 21. ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଧାରା 20 ଓ 21ର ବ୍ୟତୀତ. Then originally there were 7 fundamental rights but by the 44th Constitutional Amendment Act 1978 the right to property has been deleted from the list of fundamental rights. ବା ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ 7ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କ୍ରମେ 1978 ମସିହାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା. Now right to property is a legal right and it has been inserted in Article 300A ବା ଏବେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏକ କାନୁନୀ ଅଧିକାର ଭାବରେ ଧାରା 300Aରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ. So now there are 6 fundamental rights
इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तेणु एबे भारतीय नागरिक माने 6टी मौलिक अधिकार उपभोग करुछंती। सेगुड़िक हला द फर्स्ट वन इज द राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18 बा समानतार अधिकार धारा 14 रु 18। देन द सेकेंड वन इज राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22 बा स्वाधीनतार अधिकार धारा 19 रु 22। देन द थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम आर्टिकल 23 टू 24 बा शोषण विरोध रे अधिकार धारा 23 और 24। देन द फोर्थ वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28 बा धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार धारा 25 रु 28। देन द फिफ्थ वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30 बा सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार धारा 29 और 30। देन द सिक्स्थ वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 बा सांविधानिक प्रतिकार अधिकार धारा 32। नाउ वी डिस्कस ईच राइट सेपरेटली वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज द राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ धारा 14 आईन आगरे समस्त नागरिक समान और आईनगत सुरक्षा समस्तंक पई समान अटे। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजियन कास्ट सेक्स एंड बर्थ धारा 15 जाति धर्म वर्ण लिंग और जन्मस्थान भित्तिरे कौनसी नागरिक प्रति पातर अंतर करा जाई पारिबो नाही। देन आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बा धारा 16 सरकारी चाकरी तथा नियुक्ति क्षेत्र में समस्तंकु समान अधिकार प्रदान। देन आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बा धारा 17 अनुଯାयी अस्पृश्यता बा छुआछुआ भेदभाव निवारण करिवा। देन आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटिल बा धारा 18 अनुଯାयी आलंकारिक उपाधि गुड़िकर उच्छेद। देन द सेकेंड वन इज राइट टू फ्रीडम व्हिच इज मेंशन इन आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 6 फ्रीडम हैव बीन गिवेन अंडर दिस आर्टिकल बा धारा 19 रे 6 गोटी प्रसंग रे स्वाधीनता प्रदान करे। फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बा भाषण और मतामत प्रकाश स्वाधीनता। देन फ्रीडम ऑफ एसेम्बल बा शांतिपूर्ण समावेश रे मिलित होबार स्वाधीनता। देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बा संघ बा समिति गठन स्वाधीनता। देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बा भारत वर्ष मध्य अबाध यातायातर स्वाधीनता। देन फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट बा कौनसी स्थान रे बसवास करिवार स्वाधीनता। देन द लास्ट वन इज फ्रीडम ऑफ ऑक्युपेशन एंड प्रोफेशन बा जेकोसी वृत्ति जीविका और व्यवसाय करिवार स्वाधीनता। देन आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस बा एही धारा रे दोषी बा अपराधी को 3टी अधिकार प्रदान करे। द फर्स्ट वन इज सही समय रे प्रचलित नथिबा आईन अनुसार दंडित हेब नाही। देन द सेकेंड वन इज गोटे अपराध पाई 2 थर दंड भोग करिपारिबो नाही। देन द थर्ड वन इज कौनसी व्यक्ति को निज विरोध रे साक्ष्य देबाकू बाध्य करा जाई पारिबो नाही। देन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बा
जीवन धारण और व्यक्तिगत स्वाधीनतार अधिकार। एंड हियर a sub article 21A, which is most important in examination point of view, right to education for the age group of 6 to 14 years of age, which is added in fundamental right as per 86th constitutional amendment act 2022 बा 6 ରୁ 14 वर्ष बालक बालिका मानकु बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान। देन आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन बा बेआईन गिरफ्तारी को निजकु मुक्त करिवार अधिकार। देन द थर्ड वन इज राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन व्हिच इज मेंशन इन आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर एगेंस्ट ह्यूमन बींग्स बा मनीष किणा बिका बेठी ओ बिना मजूरी रे व्यक्ति को खटाइबा आदि व्यवस्था को बारण करिबा। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 इयर्स ऑफ एज इन एनी डेंजरस फैक्ट्री और इन पब्लिक प्लेसेस बा 14 वर्ष रु कम बयसर शिशु मानकु खणी कल कारखाना और अन्य कौनसी विपज्जनक काम नियोजित करि परिबे नाही। देन द फोर्थ वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन व्हिच इज मेंशन इन आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजियन बा प्रत्येक नागरिक स्वाधीन भाव में धर्मग्रहण धर्माचरण और धर्म प्रचार करिपारिबे। आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस एफआईआर बा प्रत्येक निजर धर्मानुष्ठान प्रतिष्ठा करिबा सहित यार रक्षणाबेक्षण करिपारिबे। देन आर्टिकल 27 प्रोहिबिशन ऑफ टैक्सेस ऑन रिलीजियन बा धर्म संबंधी बाध्यतामूलक कर बा अर्थ आदाय करिपारिबे नाही। देन आर्टिकल 28 प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑन एनी पार्टिकुलर रिलीजियन इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बा सरकारंक द्वारा प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में परिचालित कौनसी शिक्षा अनुष्ठान रे निर्दिष्ट धर्म संपर्कित शिक्षादान करा जाई परिबो नाही। देन द फिफ्थ वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट व्हिच इज मेंशन इन आर्टिकल 29 and 30। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड बा संख्यालघु संप्रदाय मानंकु भाषा लिपि और संस्कृतिर सुरक्षा करिबा। आर्टिकल 30 राइट टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संख्यालघु गोष्ठी निज मन मुताबक शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठा करिपारिबे और सेगुड़िक सरकारी साहाय्य प्रदान करिबा। देन द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज व्हिच इज मेंशन इन आर्टिकल 32। अकॉर्डिंग टू B.R. आम्बेडकर इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बा आम्बेडकर का मतरे धारा 32 होउची संविधान रो हार्ट ओ सोल। Then, in case of violation of fundamental right, a person can directly move to the Supreme Court under Article 32 and to the High Court as per Article 226 बा उपरोक्त 5टी मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले प्रत्येक नागरिक यार सुरक्षा पाई धारा 32 अनुजाई भारतर उच्चतम न्यायालय और धारा 226 अनुजाई राज्यर उच्च न्यायालय रे आवेदन करि परिबे। देन देयर आर 5 रीट इन आर्टिकल 32। मौलिक अधिकार गुड़िक सुरक्षा देवाई भारतर उच्चतम न्यायालय और राज्यर उच्च न्यायालय 5 प्रकार रीट बा हुकुमनामा बा निर्देशनामा जारी करि परिबे। सेगुड़िक हला
The first one is habeas corpus বা বন্দি প্রত্যক্ষাকরণ. It means to have the body. Then the second one is mandamus বা পরমাদেশ. It means we command. Then the third one is prohibition, which means forbid বা নিষেধাদেশ. Then the fourth one is certiorari বা certified বা অধিকার পৃচ্ছা. Then the last one is quo warranto. It means what is the authority বা উৎপ্রেক্ষণ. Then in next video we solve some important multiple choice question from fundamental rights. If anybody have any type of doubt, please ask me on comment box. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you for watching.